سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سپریم کورٹ کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی کورٹ آف انکوائری کی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ فوج میں خود احتسابی ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خودکار عمل جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے۔ فوج میں خود احتسابی ایک کڑا، سخت، شفاف اور خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے۔ 7 مئی کو ہونے والی نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری، ہمیں اپنے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پر فخر ہے۔ ٹاپ سٹی کیس ہے کیا؟ 8 نومبر 2023 کو ٹاپ سٹی کے مالک کنور معز احمد خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں الزام لگایا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ 12 مئی 2017 کو دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں ٹاپ سٹی کے دفتر اور معز خان کی رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر سونے، ہیروں کے زیورات اور رقم سمیت قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ فیض حمید نے مدعی سے ملاقات کی اور کہا کہ چھاپے کے دوران چھینا گیا 400 تولہ سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے۔ کورٹ مارشل کیا ہوتا ہے اور ملٹری کورٹ میں کورٹ مارشل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فوج میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اس افسر کے رینک کی مناسبت سے ایک مجاز اتھارٹی سزا کا فیصلہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی حاضر سروس یا ریٹائرڈ افسر کے خلاف کورٹ آف انکوائری ہوتی ہے۔ دوسرے حصے میں سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے اور اگر ثبوت اور شواہد موجود ہوں اور جرم ثابت ہو رہا ہو تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جاتا ہے۔ گورنمنٹ کے کسی ارادے اور کسی منصوبے کے تحت گرفتاری ہوئی لگتی ہے، یہ پک اینڈ چوز سے تو انصاف نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی عبرت حاصل کرتا ہے۔ اہم پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ایک طرح سے حراست میں لیا جانا اور اس کے خلاف کورٹ مارشل کا اعلان ہونا، اب یہ بہت وسیع دائرہ کار ہے۔ حکومت کے کسی ادارے یا کسی منصوبے کے تحت یہ گرفتاری لگتی ہے۔ سینئر قانوندان اور پیپلز پارٹی رہنما اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ یہ سنسنی خیز بات نہیں ہے، معاملہ کچھ عرصے بعد سامنے آئے گا۔ نون لیگی رہنما عرفان صدیقی کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ریٹائر ہونے کے بعد فیض حمید نے کن کن چیزوں میں دخل اندازی کی ہے۔ Everybody is treating and teaching their own religion, their own interpretation of Quran, not the interpretation of قائد اعظم محمد علی جناح۔ آج مودی کی انڈیا میں مائنورٹیز کو سیف ہیون نہیں ہے۔ ماضی میں کسی اور کی جنگ کا حصہ بننے سے ریاست کو نقصان ہوا۔ 1970 کے بعد ہمیں تقسیم کیا گیا، پڑوسی ملک کی جنگ میں جھونک دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے آج نریندر مودی کی بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں، اسی وجہ سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ سانحہ مشرق پاکستان کے بعد جو کچھ ہوا اس کے آئینی گواہ ہیں۔ قائد اعظم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غریب اور امیر کا پاکستان الگ الگ ہوگا۔ بانیان پاکستان کے خوابوں کی تعبیر نوجوانوں کو کرنی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کامن ویلتھ یوتھ الائنس سیکریٹریٹ کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نہیں، عوام کا خادم بن کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری کوشش ہے کہ ایک پاکستانی قوم حقیقی یوم آزادی منائے۔ بلوچستان دشمن قوتوں کی زد میں ہے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ مخصوص ٹولہ پروپیگنڈے کے ذریعے ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں آل بلوچستان جشن آزادی شوٹنگ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اچھی چیز ہے جس کا منفی استعمال کیا جا رہا ہے۔
इंटरव्यू शुरू हो चुके। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठा कर ले जाएंगे। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। आज 2 साल हो गए और उन पर 14 केसेस हैं, मगर अभी तक चालान नहीं मिले। पुलिस ने 10 लाख रुपए लेकर 9 मई के मुकदमात में नाम डाले। मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जाँ बहक। लेविस के मुताबिक फायरिंग मस्तोंग के इलाके कटकुचा में हुई, जहां नामालूम अफराद ने डीसी पंजगोर की गाड़ी पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में डीसी पंजगोर जाकिर बलोच और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंजगोर के चेयरमैन अब्दुल मालिक बलोच जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जाकिर बलोच जख्मियों को किताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। कौमी असम्बली के 3 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान कांजो, अजहर क़य्यूम और जुल्फ़िकार अहमद को कामयाब करार दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। NA 154 लोधरा, NA 81 और NA 79 गुजरेवाला में एतराज़ात आयद किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने PP 133 ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद को भी कामयाब करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म करने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने केस में इख्तिलाफी नोट लिखा और कहा कि इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म इसके दायरे इख्तियार से तजावुज़ है। हुकूमत आइन में तब्दीली करना चाहती है ताकि काजी फायजीज़ा को दोबारा चीफ जस्टिस बना सके। बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं माना और चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से ज़्यादा बुरे हैं। हसीना वाजिद ने चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ अपने लगाए हुए थे, अपोजिशन को दीवार से लगाया था। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी हुई हैं और हो रही हैं। काउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज इंसाफ का कत्ल हुआ। हमारी 4 नशिस्तें एक पेन के स्ट्रोक से किसी और सियासी जमात को दे दी गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नून लीग के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं। ऐसे हालात में नशिस्तें वापस लेना इंसाफ के तकाज़ों के बरक्स है। PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि हमारा आइन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जा रहा है। इस मुल्क का क्या होगा जिसमें आइन भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। 17 सीटों वाले लोग हैं, ये किसी सूरत में नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड्स के शिकायत की सतह पर बंद करने से मुतालिक बानी PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। बुकला सफाई की रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर मियां उमर नदीम के बयान पर जरा मुकम्मल ना हो सकी। बुकला सफाई आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा मुकम्मल करेंगे। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। बुशरा बीबी की 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की अडियाला जेल में अदालत ने बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम जब इतने सारे मुकदमात में गिरफ्तार हो तो तफ्तीश जरूरी है। अदालत के रिमांड समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात की फराहमी और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जब इद्दत केस में बरी हो चुकी तो फिर गिरफ्तारी हुई। उनका केस ये है कि 108 तहाइफ हैं, तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगा? क्या नैब उसी रोज गिरफ्तारी डालेगा जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स।
जमात इस्लामी धरना खुद देती है, ख़त्म भी खुद करती है। एम्पायर की उंगली का इंतजार नहीं करती। रिलीफ ना मिला तो कराची से चित्राल तक सब लोग काफिले की सूरत में डी चौक जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 41 रोज में हुकूमत ने रिलीफ नहीं दिया तो फिर अवाम को डी चौक जाने से नहीं रोकेंगे। हाफिज नईम कराची में धरने दे देकर अमीर बने हैं, हर मसले का हल धरना समझते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है कि जमात इस्लामी को इतने वोट ही नहीं मिले जितने पहिया जाम करने के लिए जरूरी हैं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर से जायद की कमी मुतवक्के। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए तक कमी का इम्कान। पाकिस्तान के पहले टाइट गैस मंसूबे से पैदावार शुरू, यौमिया 15 लाख मौक़िफ़ फिट गैस हासिल। OGDCL के मुताबिक सिंध के ज़िला सजावल के नूर वेस्ट वेल 1 सजावल से 15 लाख मौक़िफ़ फिट यौमिया गैस हासिल की जा रही है। गैस को सुई सदरन नेटवर्क में शामिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। हालिया मानसून बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 6 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए, 7 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी रेलों के बाइस 28 घर मुकम्मल तबाह, 76 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तूफानी बारिशों से 67 एकड़ जमीन और 17 किलोमीटर सड़कें मुतासिर, 5 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। कराची में भी सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बूंदाबांदी। तेहोनी फौज की पूरी रात खान यूनुस पर बमबारी और गोलाबारी, तिब्बी अमली के रुकन समेत 3 अफराद शहीद और कई जख्मी। रफा, दीर अल-बला और अल-बगाजी पर भी फिजाई हमले। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 25 हो गई, कई जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 39,897 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह का इजराइल पर एक और वार, लबनान से ताज़ा हमले में जियातून के इलाके में इजरायली फौजी मरकज को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के मुताबिक मुजाहिदीन ने हाल ही में तामीर किए गए इजरायली फौजी मरकज पर रॉकेट बरसाए। हमास का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए वफ्द कायरा ना भेजने का फैसला। हमास तर्जुमान का कहना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मसालिहत कार जो बाइडन के जंगबंदी विजन और सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद की रोशनी में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद के लिए अपना मंसूबा पेश करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को पहुंच गए। बैनुल-अक़वामी अल-अक़सा कॉल कॉन्फ्रेंस करबला में शुरू। कॉन्फ्रेंस इलाक़ के शहर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद अरबईन के माहौल में शुरू हुई, जिसमें मुमताज़ फ़लस्तीनी और बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई सरगर्मियों का आगाज़ वफूद के हरम इमाम हुसैन के दौरे से हुआ। तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस का उन्वान अल्तफ की जंग से तूफ़ान अल-अक़सा, जुल्म के खिलाफ फतह है। फौजी तैयारियों से साबित होता है कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हमला बराह रास्त होगा। इजरायली वज़ीर दिफा का अमरीकी हम मनसब से टेलीफोनिक राबते में वावेला। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजरायली खदशात पर मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार आबदोज और इब्राहिम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग, तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिले नगमों की गूंज, सब हलाली परचम की बहार, बाजारों में भी रौनक के उरूज पर। और साल के चारों मौसमों में सैरो तफरी के शौकीन सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की हसीन वादियाँ, बुलंद बाला पहाड़ों में टोपियाँ, व्यू पॉइंट अपनी मिसाल आप है। यहाँ से मकबूजा वादी का नज़ारा भी किया जा सकता है।